students of class 12. Today we'll be starting with a new topic that is about the replication of DNA. Now, DNA replication, what do you mean by this? DNA replication stands for the synthesis or the generation of a new DNA from the existing DNA. So, by using the DNA, it will be creating a copy of the same. Clear? By using the template, this DNA will be acting as the template DNA, which I can say that this DNA is also can be known as the parental DNA, and parental DNA, by undergoing the process of replication, they will be forming two strands of newly synthesized daughter DNA. Clear? Now, where this replication takes place? This replication takes place inside the nucleus if it's eukaryotic organisms, and it takes place inside the cytoplasm. Since there is no well-defined nucleus, it will be taking place inside the cytoplasm in the prokaryotic organisms. Clear? So, what is replication of DNA? We will be talking about each and everything, the mechanism which will be undergoing, by which the parental DNA will be transforming into two daughter DNA. Clear? Where does this take place? Now, it takes place in the nucleus of an eukaryotic organism or a eukaryotic cell, and it will be taking place inside the cytoplasm if I am talking about the prokaryotic cell. Clear? Okay. So now, in eukaryotic cell, we have talked about the cell cycle. So during the S phase of the cell cycle, during the S phase of the cell cycle, this DNA replication will take place. And in prokaryotes, it is almost a continuous process. Okay, in prokaryotes, it will be a continuous process. But if I talk about eukaryotic cell, which undergoes a proper cell cycle, then this process of DNA replication will be taking place in the S phase of the cycle. Clear? So now we will be looking into that what are the different mechanisms, what are all required to replicate a DNA strand into two daughter DNA strands. Let's see. Let us suppose that this replication of DNA, the entire thing is happening inside a factory. So if I talk about a factory, what is happening? Let's suppose this is the factory, which is your nucleus, okay, in eukaryotes. So in the factory, there will be contributing certain kind of raw materials, and raw materials will be processing inside the factory by taking help of some machinery, and finally your प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड आउट. एक फैक्ट्री में क्या होता है? फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री के अंदर काफी सारे मशीन्स रहते हैं और उस मशीन्स को दरकार पड़ता है रॉ मटेरियल्स का, जो उस मशीनरी के माध्यम से आपका एक प्रोडक्ट में तब्दील होता है. ठीक, तो ऐसे करके हम लोग समझेंगे कि क्या क्या आपके रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होगा, which are the machinery which are needed, and finally the product will be
द टू डॉटर डीएनए। तो कैसे करके याद रखेंगे? अगर हम लोग रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं, यहां पर रॉ मटेरियल्स के अंदर ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिक्वायरिंग द डीएनए, द पेरेंटल डीएनए, and after that we will be over here requiring deoxyribonucleotide triphosphates. Okay, so there are two raw materials which are required. One, of course, because since it is all concerned about making a replication of that DNA, so we will be requiring the parental DNA over here. And apart from the DNA, there will be required certain kind of deoxyribonucleotide triphosphates. Mind, it will be deoxyribonucleotide. In the previous video, we had learnt about the transcription, that how a DNA will be converted into the RNA. And over there, the raw materials which were required were ribonucleotide triphosphates. But over here I will be requiring, because since one DNA से एक दूसरा DNA बन रहा है, तो इसीलिए DNA के अंदर कौन से बेसेस होते हैं? ATGC. तो obviously I will be requiring the triphosphates of the same, such as I will be using, for the deoxy I will be using the small d, DATP, DGTP, deoxy-TTP, and deoxy-CTP. So these are the four kind of deoxyribonucleotide triphosphates which I will be requiring over it. Now see, if we state a structure of this deoxyribonucleotide, you know that it will be a sugar which will be attaching to the nitrogen base. This is your nitrogen base, this is the sugar, and the fifth carbon of the sugar will be attaching to the phosphate group. So this is a nucleotide, but here only one phosphate is attached over here. So actually this, if suppose it is adenine nitrogen base. Let's suppose this is the nitrogen base is adenine. So what will be the name of this particular nucleotide? This will be deoxyadenosine monophosphate. Why monophosphate? Because there is only one phosphate group attached to it. But over here I am taking ATP. That means over here the same structure, here will be two phosphate which will be attached. So now this become the DATP. Then what is the requirement of this? Since we only require the DAMP, that is deoxyadenosine monophosphate, so then what is the use of using the triphosphate? Now when this will be attaching with the newly formed DNA, then this will be getting removed. याद करिए, ट्रांसक्रिप्शन में भी हम लोग देखे थे कि हम लोग ले रहे थे राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, और जब वो जुड़ रहा था, जुड़ने के बाद दो फॉस्फेट ग्रुप, क्या बोलते थे उसको हम लोग? पाइरोफॉस्फेट ग्रुप। ये जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको पाइरोफॉस्फेट बोलते हैं। तो पाइरोफॉस्फेट ग्रुप अलग करेगा, कौन करेगा? पाइरोफॉस्फेटेज एंजाइम, पहले पढ़ के आए हम लोग। तो वही चीज यहां पर भी देखेंगे कि जैसे ही आपके ये दो जो एक्स्ट्रा आपके जुड़े हुए हैं फॉस्फेट ग्रुप, जब ये अलग होगा तो इसके अलग होने से देयर विल बी रिलीजिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इस एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्लियर है? ऑब्वियसली अगर फैक्ट्री के अंदर कुछ काम हो रहा है तो एक एनर्जी तो ऑब्वियसली आपका जरूरी होगा। तो यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम में आपके एनर्जी कहां से मिल रहा है ना? एनर्जी के लिए ये जो ट्राइफॉस्फेट्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जब ये ट्राइफॉस्फेट से आपके जो पाइरोफॉस्फेट ग्रुप है ये जब निकल जा रहा है, तब इट इज एलिमिनेटिंग
a lot amount of energy, and by using that energy, the entire process of the replication is taking place. कोई दिक्कत? क्लियर? अब चलते हम लोग कि अगर मैं मशीनरी की बात करता हूं तो मशीनरी के अंदर क्या क्या चीज है वो हम लोग देखेंगे. अगर मैं मशीनरी की बात करता हूं, मशीनरी के अंदर आ जाएगा all the enzymes which are required for the replication of DNA. क्लियर? और इस एंजाइम्स को याद रखने के लिए आपको एक स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा. अगर ये स्टेटमेंट आप अच्छी तरह याद रख सकते हो तो आप बिल्कुल सीक्वेंस में कौन से एंजाइम के बाद कौन सा एंजाइम आ रहा है, ठीक, किस हिसाब से वो काम कर रहा है, वो सारा चीज आपको एकदम दिमाग के अंदर बैठ जाएगा. क्लियर? सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? आपको याद रखना पड़ेगा, हे गणेश, प्राइमरी पुलिस ला. ठीक है? क्या याद रखना पड़ेगा स्टेटमेंट? हे गणेश, प्राइमरी पुलिस ला. ठीक? थोड़ा सा हंसने का मन कर रहा है तो हंस लीजिए, बट अगर ये स्टेटमेंट आप याद रख सकते हो तो बहुत आसानी से आप एंजाइम्स का नाम भी याद रख सकते हो, और साथ साथ कौन पहले इस्तेमाल होगा एंजाइम, कौन बाद में इस्तेमाल होगा, वो भी अच्छी तरह आप याद रख सकते हैं. कैसे? देखिए, हे से आ जाएगा एंजाइम हेलिकेज, जी से आ जाएगा गाइरेज, प्राइमरी से आ जाएगा प्राइमर, और पुलिस के इससे आ जाएगा पॉलीमरेज, एंड फाइनली ला से आ जाएगा लाइगेज. सो व्हाट आर द एंजाइम्स विच आर रिक्वायर्ड? चलिए एक बार देखते हैं. हेलिकेज, गाइरेज, प्राइमर, पॉलीमरेज और लाइगेज. याद रखना पड़ेगा, ये जो प्राइमर है इससे पहले आपको क्या बैठाना है? इससे पहले बैठ जाएगा आरएनए. तो जो प्राइमर होगा उसका एक्चुअल क्या नाम है? इट विल बी आरएनए प्राइमर. हम लोग एक एक के काम को अभी बहुत अच्छी तरह इलैबोरेटली देखेंगे कि क्या किसका काम रहता है. ये प्राइमर तो हो जाएगा आरएनए, बाकी जितने भी है उनके आगे आपको क्या बैठाना है ना? डीएनए. सो इट विल बी एक्चुअली द एंजाइम्स विच आर रिक्वायर्ड, दैट इज डीएनए हेलिकेज, डीएनए गाइरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए लाइगेज. ठीक? और जो प्राइमर होगा वो क्या हो जाएगा? आरएनए प्राइमर हो जाएगा. क्लियर? चलिए एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहे थे ना. ये जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है, इसको आप याद रखिए कि ये एक फैक्ट्री के जैसा काम कर रहा है. फैक्ट्री के अंदर मशीन्स की जरूरत पड़ता है और चाहिए हमें कुछ रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स जो है वो क्या क्या है ना? वो हो जाएगा, एक तो मेरा डीएनए, जिसको देखते हुए दूसरा डीएनए बनेगा, द टेम्पलेट पेरेंटल डीएनए. एंड आफ्टर दैट वी विल बी रिक्वायरिंग सर्टेन द 4 बेसिक नाइट्रोजन बेस, जो आपका ATGC विच आर फाउंड ऑन द डीएनए, उसी के हमें डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स चाहिए, जो कि आपकी ये 4 है. ठीक? हमें मशीन्स की आवश्यकता होगा, तो यहां पे मशीन्स का काम कौन कर रहा है? एंजाइम्स अपने अपने काम कर रहे हैं. एंजाइम को याद रखने के लिए क्या स्टेटमेंट बोले थे हम लोग? हे गणेश, प्राइमरी पुलिस ला. ठीक? हे से हेलिकेज, जी से गाइरेज, आपके प्राइमरी से प्राइमर, पुलिस से पॉलीमरेज एंड ला से लाइगेज. याद रखना पड़ेगा, जो प्राइमर है दैट विल बी आरएनए प्राइमर, और बाकी जितने भी एंजाइम होंगे सब हो जाएगा आपके डीएनए. क्लियर है? ठीक? अब चलते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप कि कैसे करके सबसे पहले कौन सा एंजाइम काम करेगा? हेलिकेज. ठीक? तो हेलिकेज का क्या काम होगा, उसके बाद गाइरेज का क्या काम होगा, एक बार हम लोग अच्छी तरह देखते हैं. सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विथ द मैकेनिज्म और स्टेप बाय स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. सबसे पहले यहां पर हमें एक पेरेंटल डीएनए को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक? तो इस पेरेंटल डीएनए में आपके बेस पेयर्स होंगे. क्लियर?
सबसे पहला आपका जो काम होगा वो कौन सा एंजाइम का काम होगा? हे, तो हे फॉर हेलिकेज। सो सबसे पहले आपका काम हो जाएगा हेलिकेज एंजाइम का। हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा? हेलिकेज एंजाइम H फॉर हेलिकेज, H फॉर इट विल बी ब्रेकिंग क्या चीज? द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, हेलिकेज आया और हेलिकेज आके सबसे पहले इन बेस पेयर्स के अंदर जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको ब्रेक किया और ब्रेक करके इसको अनकॉइल कर दिया। क्या करेगा दूसरा स्टेप? अनकॉइलिंग या अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए ये कर दिया। मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी रस्सी में लेता हूं तो वो रस्सी को सबसे पहले अगर मुझे खोलना है तो ऑब्वियसली उसको उल्टा घुमाना पड़ेगा। तो जब उल्टा घुमाएंगे तो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे करके अब अलग होना चालू होगा। ठीक, तो ये हेलिकेज क्या कर रहा है? हेलिकेज आके ये जो पूरा कॉइलिंग करके हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए है इसको सबसे पहले ये अनकॉइलिंग करेगा और साथ साथ धीरे धीरे करके आपके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उसको तोड़ने के लिए चालू कर देगा। क्लियर? बट अब खुद सोचो, अगर ये मैं ऐसे करके खींचू, अगर कोई भी रस्सी है इसको मैं दोनों एंड्स में पकड़ के और दोनों एंड्स को अगर मैं खींचू तो ऑब्वियसली इसके ऊपर वाले हिस्से में क्या हो जाएगा? एक सुपर कॉइलिंग हो जाएगा, एक गांठ जैसा बन जाएगा वहां पर। अगर मैं बोलूं इसको हेलिकेज काम किया तो यहां पर जैसे ही आपके घूम जाएगा बहुत ज्यादा तो एक सुपर कॉइलिंग हो जाएगा और ये दोनों आपके जो मैंने खींच लिया। ठीक, तो इस एंड को हम लोग क्या नाम देंगे? इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे सुपर कॉइलिंग। तो अगर ये सुपर कॉइलिंग हो जाता है तो अब ये जो हेलिकेज है ये अच्छी तरह काट नहीं पा रहा है क्योंकि अनकॉइल करना नहीं आपका बस में हो रहा है। नीचे तो कर दिया बट ऊपर नहीं करता जा रहा है। क्लियर? अब अगर सपोज करिए ये दोनों स्ट्रैंड्स को अगर मैं छोड़ दूं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अगेन ये दोबारा आपका रिकॉइल करना चालू कर देगा। बहुत अच्छी तरह समझिए, एक आप रस्सी ले लीजिए कोई, ठीक, रस्सी के अगर दो हिस्से में पकड़ के मैं अगर जोर से उसको खींचू तो ऑब्वियसली उसके ऊपर में एक गांठ जैसा बन जाएगा, पूरा का पूरा एक साथ खुल नहीं जाएगा। खुलता है क्या? आप ट्राई करके देखिए, नारियल का रस्सी ले लीजिए कोई। ठीक, अब जैसे ही ऊपर में आपका एक गांठ जैसा बन गया उसको मैं नाम क्या देता हूं? उसको मैं नाम दे रहा हूं सुपर कॉइलिंग। ठीक, अब जैसे ही अगर मैं उसको छोड़ दूं तो वो अगेन दोनों आके आपस में घुल मिल जाएगा, मतलब अगेन इट विल बी रिकॉइलिंग स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली हमें यहां पर कुछ ऐसा चीज चाहिए जो कि इस दोनों स्ट्रैंड को पकड़ के रख सके, जो इसको फिर वापस जुड़ने ना दे। ठीक, तो यहां पर एंजाइम्स के अंदर मैं एक चीज भूल गया था बताना, वो मैं अभी बताऊंगा। यहां पर जो आपके इसको अटैच करने के लिए काम करेगा अलग अलग जगह पे, ठीक, इनको हम लोग नाम देंगे SSB प्रोटीन। क्या नाम देंगे? SSB प्रोटीन। क्या है इसका फुल फॉर्म? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये कोई एंजाइम नहीं है, ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसका सिर्फ और सिर्फ काम होगा कि हेलिकेज जब इन दोनों को लेके जोर से खींच दिया तो ये अब इन दोनों को पकड़ के रखना अपने जगह ताकि फिर से दोबारा वो रिकॉइल ना बन जाए। तो दोबारा रिकॉइलिंग से बचाने का काम कौन करेगा? एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन क्या कर रहा है ना, इस सिंगल स्ट्रैंड, ये है क्या, दिस वाज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो अभी सिंगल स्ट्रैंड बन गया है, तो इस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को बाइंड करके रख रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। कोई दिक्कत? क्लियर?
तो अगर ये बाइंड हो गया मतलब अभी ये पोर्शन खुल गया अच्छी तरह। ठीक, अभी इस स्ट्रैंड को देखते हुए एक दूसरा स्ट्रैंड बन सकता है और इस स्ट्रैंड को देखते हुए एक दूसरा स्ट्रैंड बन सकता है। वो कैसे होता है, क्लियर, अभी हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले तो पहला जो एंजाइम है उसकी बात कर लिए, हेलिकेज। उसका काम क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना और जो कॉइलिंग है उसको अनकॉइल करना। क्लियर। नेक्स्ट आ गया मेरा एसएसबी प्रोटीन। ये क्या करेगा, जो ये दो स्ट्रैंड है उसको पकड़ के रखेगा ताकि आसानी से आपका वो दिक्कत ना हो। अब ऊपर जो ये सुपर कॉइलिंग होके रखा हुआ है, जो एक गांठ जैसा आपका बन गया है ऊपर, यहां पर हेलिकेज और काम करना दिक्कत हो रहा है उसको। अब इस सुपर कॉइलिंग को खोलने के लिए तीसरा एंजाइम आ जाएगा आपका। चलो दूसरा ही मैं बोलता हूं बिकॉज दिस इज नॉट एन एंजाइम। दूसरा जो एंजाइम हो जाएगा दैट विल बी गाइरेज। क्या आ जाएगा, सो पहले अपना काम हो गया हेलिकेज का, दूसरे में काम हुआ एसएसबी प्रोटीन का और 3 नंबर पे आपका आ जाएगा एंजाइम डीएनए गाइरेज। क्लियर। गाइरेज का काम क्या है ना, गाइरेज जो है वो सबसे पहले इस गांठ को तोड़ने के लिए वो छोटा सा एक कट करेगा। वो सबसे पहले सीजर्स लेके इस छोटे से गांठ को एक छोटा सा टुकड़ा काटेगा, उसको उल्टा घुमाएगा। तो जैसे ही उल्टा घुमाया तो तुरंत आपका वो थोड़ा सा खुल गया और खुलने के बाद वो जो जहां पे वो कट किया था वो उसको फिर वो जोड़ दिया। क्लियर। मतलब गाइरेज का काम क्या होगा, एक छोटा सा कट फॉर्मेशन करना, जिसको मैं बोल सकता हूं एक निक फॉर्म करना, मतलब एक छोटा सा कट देना उस गांठ में। नेक्स्ट उसको उल्टा घुमाया, मतलब उसने रिवर्स डायरेक्शन में अनकॉइल किया। अगर मैं बोलूं रिवर्स डायरेक्शन में उसको अनकॉइल किया और रिवर्स डायरेक्शन में जैसे ही अनकॉइल किया ये जो गांठ बन गया था अब ये थोड़ा सा खुल गया। ठीक, अब ये खोलने के बाद जो ये कट था उस कट को उसने दोबारा से ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन द कट एंड्स। क्लियर। ये 3 काम करता है कौन, गाइरेज। तो इसके बाद स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, ऊपर वाला जो गांठ बना हुआ था वो अब थोड़ा सा खुल गया। ठीक, और खुल के जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है वो तो खुला ही हुआ है क्योंकि यहां पर तो आपके एसएसबी प्रोटीन इसको पकड़ के रखा हुआ है। तो जैसे ही ये खुल जाता है देखो, अब अगेन हेलिकेज इसको धीरे धीरे काट सकता है। मतलब क्या है, ये जो आपका कटिंग है ये एक बार में ही पूरा का पूरा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस सुपर कॉइलिंग। ठीक, तो जैसे जैसे खुलता जाएगा वैसे वैसे गांठ बनता जाएगा, सुपर कॉइलिंग होता जाएगा। वहीं पे आके गाइरेज उस सुपर कॉइलिंग को हटाएगा, उसको नॉर्मलाइज करेगा और जैसे नॉर्मल होता जाएगा तुरंत हेलिकेज आपका अपना हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके और उसको धीरे धीरे करके सेपरेट दोनों स्ट्रैंड को करता चला जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर। तो यहां पर देखो आपके 2 स्ट्रैंड अलग अलग मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इन दोनों स्ट्रैंड्स की बात करता हूं, सपोज करिए दिस इज 3 प्राइम, तो ऑब्वियसली 3 प्राइम के साथ इधर 5 प्राइम एंड हो जाएगा। 3 प्राइम के साथ ये जो एंड है 3 जा रहा है ऐसा, तो दिस विल बी माई 5 प्राइम एंड, और 5 प्राइम जो है ये इधर जाके दिस विल बी माई 3 प्राइम एंड। क्लियर। इसको ऐसे मत देखो कि 3 प्राइम इधर तो 3 प्राइम उधर। इस स्ट्रैंड को पकड़ो, ये स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर जा रहा है और ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर जा रहा है। मतलब अगर इन दोनों को खोल दिया मैंने तो ये जो बन गया मेरा दिस इज माई 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम के साथ ये जो एंड है दिस इज 5 प्राइम एंड। 3 प्राइम के साथ ये वाला जो एंड है दिस इज 5 प्राइम और इस 5 प्राइम के साथ ये जो एंड है ये मेरा 3 प्राइम एंड है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर। अब सबसे पहले जो तीसरा एंजाइम की जरूरत पड़ेगा दैट विल बी माई आरएनए प्राइमर। अब काम आएगा आरएनए प्राइमर का। अब एक्चुअली आपका रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए शुरू होगा। कैसे ना, यहां पर सपोज कीजिए इस स्ट्रैंड्स के ऊपर आपके ए टी जी सी
C, G, T, A ऐसा करके होता जा रहा था। और इसके ऊपर अगर A है यहां पर तो ऑब्वियसली यहां पर क्या था, T था, T था यहां पर, तो यहां पर A, G, G will be with the C, C will be with a G, C will be with a G again, G will be with C, T will be with A और A will be with T। ऐसा आपका दो स्ट्रैंड था ये। क्लियर? ठीक, इसको एक एक करके आपको लिख लिख के याद करना है, तभी जाके आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। पॉज करिए वीडियो को और एक बार खुद करके देखिए, देखिएगा आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया है। ठीक, अच्छा, तो ये आपका खुल गया। अब कहां से रेप्लिकेशन होगा? जैसे हम लोग बात किए थे ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए, आरएनए जो आपका सिंथेसाइज होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक, वैसे ही आपको यहां पर भी याद रखना पड़ेगा कि जो न्यू डीएनए सिंथेसाइज होगा, डीएनए सिंथेसिस ऑल्सो विल बी ऑकरिंग फ्रॉम द 5 प्राइम डायरेक्शन टू द 3 प्राइम डायरेक्शन। ये भी आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होगा। क्लियर? ठीक, तो अगर सपोज करिए यहां पर आपका 3 प्राइम है तो ऑब्वियसली इसके साथ जो आपका वही राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, उसको आके यहां पे एक एक करके अटैच करता चला जाएगा और अटैच करते हुए यहां से आपका एक निकल जाएगा सीधा सा स्ट्रैंड, इसको देखते हुए। ठीक, वैसे ही इसको देखते हुए एक दूसरा स्ट्रैंड बनेगा। क्लियर? ठीक, तो अब किस जगह से आपका ये शुरुआत करना है? माइंड, किस जगह से डीएनए रेप्लिकेशन, खोल तो दिया मैंने डीएनए को, अब कौन से जगह से डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करना है, उसको शुरू करना है, जिसको हम लोग नाम देंगे ओराई। ये नाम बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा, जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब भी इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ओराई रेफर्स टू द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि रेप्लिकेशन कहां से शुरू होगा? ठीक, वो शुरुआत का जो आपका जगह है वो लोकेट करने का काम कौन करेगा? आरएनए प्राइमर। ठीक, क्लियर? वाई आरएनए प्राइमर? यहां पे डीएनए प्राइमर भी इस्तेमाल कर सकते थे, बट डीएनए प्राइमर के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस ओराई को पहचान पाए। क्लियर? तो इसीलिए हम लोग डीएनए प्राइमर ना इस्तेमाल करते हुए हम लोग आरएनए प्राइमर का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो आरएनए प्राइमर है वो एक्चुअली इस इनिशिएटिंग पॉइंट को पकड़ेगा अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। मतलब क्या हुआ? ये जो आपका यहां पर 3 प्राइम है, मैंने क्या बोला? डीएनए सिंथेसिस होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ऑब्वियसली 3 प्राइम अगर यहां पर होगा तो जो 5 प्राइम एंड होगा वो इस एंड पे होना चाहिए। जो स्ट्रैंड इसको देखते हुए बनेगा उसके इस एंड पे 5 प्राइम होना चाहिए। तो अगर यहां पे आपका ए है तो ऑब्वियसली यहां पर आके प्राइमर बैठ जाएगा। ठीक, प्राइमर यहां पर बैठ जाएगा तो ये एंड हो जाएगा आपका 5 प्राइम एंड, लिख सकता हूं मैं। अब इसके अंदर आइए, यहां पे 5 प्राइम है तो ऑब्वियसली यहां पर जो एंड होगा दैट विल बी द 3 प्राइम एंड। तो ऐसे उल्टा तो जा नहीं सकता क्योंकि 5 प्राइम से 3 प्राइम जाएगा, तो ऑब्वियसली अगर 5 प्राइम यहां पर है तो इस एंड इधर विल बी 3 प्राइम। तो 3 प्राइम के ऑपोजिट यहां पर आपका हो जाएगा 5 प्राइम एंड, है कि नहीं? ठीक, तो ये जो हो जाएगा दिस विल बी द 5 प्राइम एंड इन दिस स्ट्रैंड। तो अब यहां से मतलब दोनों देखो आपके, ये जो प्राइमर बैठा वो इस स्ट्रैंड के बिहाफ पे बैठा और ये जो प्राइमर बैठा वो इस स्ट्रैंड के बिहाफ में बैठा। मतलब दो आरएनए प्राइमर अपने अपने इनिशिएटिंग पॉइंट्स में बैठ गया है जहां से वो अब शुरू करना चालू हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, अब नेक्स्ट आपका आएगा, मतलब मेरे पास इनिशिएटिंग पॉइंट्स मिल गया जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगा। अब सेकेंड जो आपका यहां पर एंजाइम आएगा दैट विल बी आरएनए पॉलीमरेज। अभी आरएनए पॉलीमरेज तो वहां पे हम लोग एक याद रखे, यहां पे आरएनए पॉलीमरेज दो तरीके के काम में आएगा। एक आरएनए पॉलीमरेज पहले जो इस्तेमाल होगा दैट विल बी आरएनए पॉलीमरेज 3, ये हमें याद रखना पड़ेगा। इसको ऐसे 3 भी लिख सकते हैं या रोमन 3 भी लिख सकते हैं।
क्लियर है? तो अब आरएनए पॉलीमरेज 3 का काम क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज 3 का काम होगा, उसको अब यहां से इनिशिएटिंग पॉइंट जैसे मिल गया, अब वो धीरे धीरे इसके जैसे आपका इसको देखते हुए अटैच करते हुए वो एक आरएनए स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रैंड बनाते चला जाएगा। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं यहां पर बोलूं डीएनए पॉलीमरेज 3 आके आरएनए से आपका ये सीधा एक स्ट्रैंड यहां तक बनाना चालू कर देगा। मतलब देखो दोनों में ही जो एरो के हेड है, दिस इज 5 प्राइम एंड, तो दिस एंड विल बी द 3 प्राइम एंड। ठीक वैसे ही दिस विल बी द 5 प्राइम एंड, तो ये होके दिस विल बी माई 3 प्राइम एंड। मतलब क्या है? दोनों को देखते हुए ही जो मेरा न्यूली फॉर्म डीएनए हो रहा है, दैट इज हैपनिंग इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। कोई दिक्कत? क्लियर? अगर एक साथ बहुत ज्यादा हो रहा है तो चलिए यहां पे ब्रेक करके हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्या हम लोग लिए थे सबसे पहले एक डीएनए, और इस डीएनए के अंदर हमें पता है 3 प्राइम से 5 प्राइम और 5 प्राइम से 3 प्राइम दोनों एंटी पैरेलल है। सबसे पहला जो एंजाइम काम किया वो हेलिकेज। हेलिकेज H फॉर हेलिकेज, H फॉर उसका मेन काम है, इट विल बी ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच आर बिटवीन द बेस पेयर्स। ठीक? तो इन बेस पेयर्स का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो धीरे धीरे आपका हम रिमूव करता हुआ जाएगा और साथ साथ दोनों स्ट्रैंड को खींचेगा। क्लियर? ठीक? तो जैसे वो खींच लिया दोनों स्ट्रैंड को, ऊपर एक सुपर कॉइलिंग तैयार हो गया। इस सुपर कॉइलिंग को तोड़ने के लिए उसको फिर आपका मतलब नॉर्मल केस में आने के लिए दरकार पड़ेगा आपका जो एंजाइम, दैट इज योर द गाइडेज। गाइडेज आएगा, उसको छोटा सा कट करेगा, उसको उल्टा घुमाएगा और फिर जो आपका कट एंड था उसको ज्वाइन कर देगा। तो ये काम हो जाएगा गाइडेज का। तो आफ्टर गाइडेज एक्ट कर लिया, ये जो सुपर कॉइलिंग हो गया, ये सुपर कॉइलिंग आपका नॉर्मल अगेन बन गया। तो अब अगेन जो हेलिकेज है वो धीरे धीरे कटता चला जाएगा ऊपर तक, और ये जो स्ट्रैंड है ये बढ़ता चला जाएगा आपका। ठीक? इस दोनों स्ट्रैंड को वहीं पे फिक्स रखने के लिए, क्योंकि अगर ये छोड़ दूं तो ये तुरंत आपके दोनों मिल जाएगा और मिलके अगेन इट विल बी कॉइलिंग। तो इस दोनों स्ट्रैंड को यहीं पे रखने के लिए हमें एक प्रोटीन की जरूरत पड़ता है, जिस प्रोटीन का नाम है SSB प्रोटीन या सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। व्हाई? बिकॉज दिस प्रोटीन इज बाइंडिंग द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। ठीक? जो आपके अभी खुला है। क्लियर है? अच्छा, तो ये जो स्ट्रक्चर एक आ रहा है आपके पास, ये जो ऐसा करके एक स्ट्रक्चर आ रहा है आपके पास, इस स्ट्रक्चर को ही हम लोग नाम देते हैं द रेप्लिकेटिंग फॉर्क। क्या नाम देते हैं हम लोग? इसी को ही हम लोग नाम देंगे रेप्लिकेटिंग फॉर्क। कोई दिक्कत? ये जो ऐसा खुल रहा है इसको हम लोग नाम देते हैं द रेप्लिकेटिंग फॉर्क। क्लियर है? ठीक? अब क्या हुआ ना, ये दोनों तो बन गया आपका, मतलब एक साइड 3 प्राइम और एक साइड आपका 5 प्राइम बन गया। अब आपका काम आएगा आरएनए प्राइमर का। आरएनए प्राइमर क्या करेगा ना, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को पहचान सकता है। इट कैन आइडेंटिफाई दैट स्पॉट या दैट पॉइंट फ्रॉम विच द ओरिजिन या फ्रॉम विच द रेप्लिकेशन विल इनिशिएट, विल स्टार्ट। ठीक? तो आरएनए प्राइमर आके अपने अपने जगह पे बैठ जाता है। तो ऑब्वियसली आरएनए प्राइमर आके किस जगह पे बैठेगा, कौन से डायरेक्शन में बैठेगा? 5 प्राइम एंड में बैठेगा। 5 प्राइम कहां पे होगा? जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसका 3 प्राइम। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जिसका 3 प्राइम यहां पे है, तो 3 प्राइम के ऑपोजिट यहां पे जो 5 प्राइम एंड होगा, यहीं पे आरएनए पॉलीमर मतलब प्राइमर आके यहां पे बैठ गया। तो ये एक्चुअली क्या है? दिस इज द आरएनए प्राइमर हम लोग बोल सकते हैं, जो आके यहां पर बैठा। ठीक है? और ये आरएनए प्राइमर यहां पर आके बैठने के बाद आरएनए प्राइमर के ऊपर ये आपका कैपेबिलिटी नहीं है कि वो धीरे धीरे अब डीएनए बना सके। ठीक? तो डीएनए बनाने के लिए जो एंजाइम की आवश्यकता होगा, दैट विल बी डीएनए पॉलीमरेज 3। क्लियर? तो डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा यहां पर, और जिस जगह पे आरएनए प्राइमर बैठा था उस आरएनए प्राइमर की जगह से वो सीधा अब अपना काम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में नया डीएनए स्ट्रैंड को बनाता चालू कर देगा। किसको इस्तेमाल करके? साइटोप्लाज्म में क्या है? साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के अंदर थोड़ा थोड़ा जो आपका स्ट्रोमा है उसमें क्या है?
जो हम लोग रॉ मटेरियल्स की बात किए थे, द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, तो उसको एक एक करके बैठाएगा यहां पर, ठीक। 2 पायरोफॉस्फेट ग्रुप हट जाएगा, उससे मिलेगा एनर्जी, जिसके हिसाब से ये पूरा मशीनरी आपका प्रोसेस सही ढंग से काम चलता जाएगा। क्लियर है? तो जैसे आपका यहां पर देखेंगे तो यहां पे टी है, टी के जगह यहां पे ए बैठ गया, जी के साथ यहां पे सी बैठ गया, सी के साथ यहां पे जी बैठ गया, तो ऐसे ऐसे करके आपका सीधा चलता जा रहा है, ठीक। जब डीएनए पॉलीमरेज अपना काम यहां तक कर लिया, मतलब कि आपका रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया, सिर्फ ऊपर वाला भी तो बचा है। मतलब क्या है, ये जैसे जैसे होता जाता है वैसे वैसे आपकी ये भी जो डीएनए है अब ये खुलता जाएगा ऊपर तक, यहां तक कंप्लीट हो गया है, तो अब ये और ऊपर तक चलता जाएगा, ठीक। यहां तक मान के चलिए कंप्लीट होकर रखा हुआ है अपना। सपोज करिए ये जो ए है दिस इज योर दिस वन, और ये जो टी है सपोज करिए दिस इज योर टी, तो यहां तक तो आपका बन गया और इसका यहां तक बन गया। क्लियर? दिस विल बी योर 3 प्राइम एंड, दिस विल बी द 5 प्राइम एंड, दिस विल बी 3 प्राइम एंड, जिसका ये हो जाएगा 5 प्राइम, इसका ये हो जाएगा 5 प्राइम, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 3 प्राइम, ये हो जाएगा 5 प्राइम और ये हो जाएगा 3 प्राइम। कोई दिक्कत समझने में? तो अब जैसे ये वाला पूरा अच्छी तरह यहां तक खुल गया, तो अगेन यहां पर क्या होगा, आरएनए प्राइमर का दरकार नहीं पड़ेगा, उसको लेंथ मिल गया है, तो इधर तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही डायरेक्शन है, ठीक। तो ये सीधा चलता जाएगा फिर यहां तक। नाउ 3 प्राइम एंड विल बी ओवर हियर, बट यहां पर क्या होगा, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इसको ऊपर तो जा नहीं सकता, ऊपर जा सकता है क्या? ऊपर तो जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तो नीचे के डायरेक्शन में है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ऑब्वियसली ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जा सकता आरएनए पॉलीमरेज। मतलब इसको अगेन कहीं ना कहीं जहां तक खुला है वहां पर अगेन एक आरएनए प्राइमर आके यहां पे बैठना पड़ेगा। दिस विल बी द न्यू 5 प्राइम एंड नाउ, ठीक। और यहां पर जैसे आरएनए प्राइमर आके दोबारा बैठेगा, अब अगेन सिंथेसिस चलता जाएगा, ठीक। मतलब देखा जाएगा जब ये पूरा इंटायर लेंथ ऑफ द डीएनए हो गया, एक जो आपका ये सपोज करो 2 पेरेंटल स्ट्रैंड है अपना, ये हुआ था 3 प्राइम, ये हुआ था 5 प्राइम, ये हुआ था 3 प्राइम, ये हुआ था 5 प्राइम, ठीक। इसके लिए जो स्ट्रैंड बना, ये स्ट्रैंड पूरा का पूरा एक साथ बनता चला गया, दिस इज योर 5 प्राइम एंड, दिस इज योर 3 प्राइम एंड। मतलब ये देखो दोनों स्ट्रैंड मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड बन के, और ये तो एक प्रॉपर डीएनए बन गया, ठीक। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर काफी सारे छोटे छोटे टुकड़े में आपके स्ट्रैंड्स बन रहा है, यहां पे काफी सारे छोटे छोटे टुकड़ों में आपके बन रहे थे, ठीक। क्लियर? तो ये जो टुकड़े में बन रहे हैं, इन टुकड़ों को हम लोग नाम देते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग नाम देते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। और ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स क्या कर रहा है, मतलब क्या है, 2 टाइप के सिंथेसिस हो रहा है। देखिए, एक तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, एक डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, ठीक। क्लियर? अब 2-3 हमें टर्म्स याद रखना पड़ेगा यहां पर। एक तो ये जो दोनों आपके स्ट्रैंड्स है, एक ये स्ट्रैंड और एक ये स्ट्रैंड, जो पेरेंटल डीएनए के स्ट्रैंड्स थे, इन दोनों स्ट्रैंड्स को हम लोग क्या नाम देंगे? इनको हम लोग नाम देंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। कोई दिक्कत? क्लियर? अब जो न्यूली फॉर्म्ड डीएनए हुआ, इसके अंदर एक स्ट्रैंड तो अच्छी तरह पूरा का पूरा बढ़ता चला गया, जैसे कि ये स्ट्रैंड्स हो गया मेरा, ठीक, जिसके अंदर कोई भी फ्रैगमेंटेशन नहीं हुआ। इस स्ट्रैंड को हम लोग नाम देंगे लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक, जिसका सिंथेसिस कैसा हुआ? जिसका सिंथेसिस हुआ कंटिन्यूअसली, ठीक। ये कंटिन्यूअस आपका सिंथेसिस होता गया विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्रैगमेंट्स। जो दूसरा स्ट्रैंड हुआ, जो फ्रैगमेंट्स के अंदर है, इस फ्रैगमेंट्स को क्या नाम देते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स।
तो ये जो स्ट्रैंड्स है, इस स्ट्रैंड्स को हम लोग नाम देंगे, क्योंकि ये रुक रुक के आपका हो रहा है, इसको हम लोग नाम देंगे लैगिंग स्ट्रैंड। क्या नाम देंगे इसका हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। और ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है, ये एक्चुअली कैसा हो रहा है? डिसकंटिन्यूअसली हो रहा है। इट इज हैपनिंग इन अ डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। समझ में आया ना? ठीक, क्या कर रहे हैं हम लोग? चलो एक बार और देख लेते हैं। यहां तक समझ में आया था कि प्राइमर बैठा, अब प्राइमर की जगह आएगा डीएनए पॉलीमरेज, वो अब उसको रन करता चला जाएगा। अब जैसे जैसे खुलता गया ऊपर तक, एक चीज आपका हम लोग देखेंगे कि एक टेम्पलेट को इस्तेमाल करते जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो जाएगा, ये तो सीधा चलता जा रहा है। ये क्या है? ये 3 प्राइम एंड है इसका। तो ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये सीधा कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं, इसको लीडिंग स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं। ठीक, बट इसके ऑपोजिट जो स्ट्रैंड आपका पैदा हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है ना, कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में आपके स्ट्रैंड्स हो रहे हैं। इन छोटे टुकड़ों को हम लोग क्या नाम देते हैं? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक, और ये जो टुकड़ों में आपके हो रहे हैं, इस स्ट्रैंड को हम लोग नाम देते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, सिंस इट इज फॉर्मिंग इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर। कोई दिक्कत यहां तक? तो अब आखिर तक मेरे पास आके क्या बन गया? एक तो बिल्कुल तैयार होकर रखा हुआ है, बट ये जो स्ट्रैंड है ये अभी तक तैयार नहीं है। अब इसके अंदर इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले ये जो ज्वाइनिंग करने के लिए यहां पर, ठीक, यहां पर आपका दरकार पड़ेगा आप बोल सकते हो द लास्ट एंजाइम, दैट इज योर डीएनए लाइगेज। लाइगेज क्या करेगा? लाइगेज आप याद रख लो, ये हमेशा जो एंड्स है उसको ज्वाइन करेगा। इट विल बी ज्वाइनिंग द एंड्स ऑफ द फ्रैगमेंट। तो ये जो एंड्स है, इस एंड्स को बीच में से ज्वाइन करने का काम किसका होगा? डीएनए लाइगेज। तो जैसे ही डीएनए लाइगेज पूरा काम कर दिया, मतलब अब मेरे पास ये स्ट्रैंड भी एक प्रॉपर फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये भी आपका एक स्ट्रैंड बन गया। और इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो ही गया है आपके पहले से। ठीक, तो फाइनली आफ्टर द एक्शन ऑफ द डीएनए लाइगेज, वी आर हैविंग फ्रॉम द पेरेंटल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, वी आर हैविंग 2 डॉटर डीएनए स्ट्रैंड। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? क्लियर है? अच्छी तरह समझ में आया? तो चलो इसको पूरा का हम लोग एक फ्लो चार्ट के हिसाब से लास्ट समझ लेते हैं। ठीक, तो मेरा ये डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग देख लेंगे लास्ट एक फ्लो चार्ट के हिसाब से कि कैसा करके आपका ये डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। सबसे पहले हमारा डीएनए रहेगा, दिस इज योर पेरेंटल डीएनए। पेरेंटल डीएनए के ऊपर सबसे पहला एंजाइम कौन काम कर रहा है? हेलिकेज। हेलिकेज आया और इनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता चला गया। ठीक, दोनों को खींचते चले गए। तो जैसे ही खींचा, ऊपर एक सुपर कॉइलिंग हो गया और ये 2 स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, जिसको क्लैम्प करने के लिए क्या आया? बोलते जाइए, एसएसबी प्रोटीन आया। ठीक, एसएसबी प्रोटीन अगर ना आता तो ये दोनों स्ट्रैंड दौरान आपके अगेन दे विल बी फॉर्मिंग अ कॉइलिंग। इस अनकॉइलिंग को, मतलब ये जो सुपर कॉइलिंग है, इसको रिमूव करने के लिए आया आपका गाइरेज। ठीक, ये गाइरेज आके इस सुपर कॉइलिंग को रिमूव किया और रिमूव करने के बाद इसको अगेन नॉर्मल शेप में बना दिया। और नॉर्मल शेप बना के एक ऐसा जो स्ट्रक्चर आया, इस स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या नाम दिए? इसको नाम दिए रेप्लिकेटिंग फॉर्क। ठीक, क्लियर? तो मेरा अब ये डीएनए स्ट्रैंड तैयार हो गया रेप्लिकेट होने के लिए। अब यहां पर सबसे पहले बैठेगा आरएनए प्राइमर। तो काम क्या किया? आरएनए प्राइमर काम किया। अब आरएनए प्राइमर आके कौन सा पोजीशन को पहचानेगा? और आई पोजीशन को पहचानेगा। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहां से होगा उसको पहचानेगा। ठीक, जैसे ही आरएनए प्राइमर आके अपने जगह पे बैठ गया, दूसरा जो एंजाइम है दैट इज
डीएनए पॉलीमरेज कौन सा 3, डीएनए पॉलीमरेज 3 आके एक तो आप उसको बढ़ता चला गया, न्यूली फॉर्म्ड आपके डीएनए स्ट्रैंड को आपका सीधा सीधा फॉर्म करता चला गया। किस डायरेक्शन में? फ्रॉम डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। ठीक, क्लियर। अगेन हेलिकेज ऊपर तक खुलता गया और ऊपर तक खुलने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। थोड़ा सा इतना ही बचा है, इंटायर लेंथ हो गया आपका। तो यहां पर देखा जाएगा एक तो कंटिन्यूअस फॉर्मेशन हो जाएगा और दूसरे में ऐसे कई सारे छोटे छोटे आपके यहां पर क्या बनता जाएगा? फ्रैगमेंट्स बनता जाएगा। जिस फ्रैगमेंट्स को हम लोग क्या नाम दिए? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्या नाम दिए इसको हम लोग? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ये जो आपके स्ट्रैंड है, सपोज दिस इज 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, तो ये जो दोनों स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड को हम लोग नाम क्या लिख सकते हैं? टेम्पलेट पेरेंटल स्ट्रैंड। इसको देखते हुए जो न्यूली फॉर्म डीएनए है, जो सीधा कंटिन्यूअसली बना, इसको क्या नाम दिए? बताते जाओ, अभी अभी बोले हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड। और जो आपके फ्रैगमेंट्स में बन रहा है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस जिसका हो रहा है, इसको हम लोग नाम दे देंगे लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक, एक चीज मैंने नहीं बताया था, यहां पर अभी भी आरएनए प्राइमर बैठा हुआ है। यहां पे तो कई जगह पे बैठा हुआ है आरएनए प्राइमर। ठीक, अब इस आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए, ठीक, आपका दूसरा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ जाएगा। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को हम लोग नाम देंगे डीएनए पॉलीमरेज 1। ये डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम क्या होगा? इट विल रिमूव द आरएनए प्राइमर, और आरएनए प्राइमर को हटा के उस जगह पे इट विल बी फॉर्मिंग द बेस, जो कि कॉम्प्लीमेंटरी होगा विथ द टेम्पलेट। टेम्पलेट के साथ जो है वहां पर ये आपके उसके आरएनए प्राइमर को हटा के और उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस को यहां पे अटैच कर देगा। ये आरएनए प्राइमर का हटाने का काम किसका है? डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम क्या है? न जहां पे आरएनए प्राइमर बैठा हुआ है वहां से सीधा रनिंग करके आपका पूरा का पूरा डीएनए स्ट्रैंड बनाने का काम किसका हो जाएगा? पॉलीमरेज 3 का। पॉलीमरेज 1 का क्या काम हो जाएगा? आरएनए प्राइमर को हटाएगा और जिस बेस से, जैसे मान लो कि यहां पे आपका टी है, तो टी को यहां पर हटा के यहां पर किसके साथ इसको अटैच कराएगा? ए के साथ अटैच करेगा। अगर यहां पे टी है तो यहां पर क्या है? ए है। तो यहां पे अगर आपका, सॉरी, अगर मैं इधर बात करूं, यहां पे सपोज करो आपका सी है, तो सी अगर इधर है तो आरएनए प्राइमर को हटाएगा और हटा के यहां पर उसकी जगह पे क्या बैठाएगा? जी को बैठाएगा। ये जो काम है, ये काम करता है कौन? डीएनए पॉलीमरेज 1। क्लियर। फाइनली हमारे पास एक जो ये लैगिंग स्ट्रैंड है, जिसके अंदर कई सारे फ्रैगमेंट्स के अंदर होता है, उस फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करने का काम कौन करेगा? डीएनए लाइगेज। ठीक, क्लियर। तो लाइगेज काम करने के बाद आपका दोनों ही स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखते हुए आपका पूरा का पूरा बन गया। ठीक, तो मेरा जो प्रोडक्ट है डीएनए से, मैं उसका एक रेप्लिका बना के 2 डीएनए न्यूली फॉर्म बनाऊंगा, तो वो मेरा प्रोडक्ट अभी बन गया है। ठीक, तो ये आपका पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेशन था, जहां पर हे फॉर हेलिकेज, गणेश गाइरेज, ठीक, प्राइमरी फॉर द आरएनए प्राइमर, पुलिस फॉर पॉलीमरेज 3 एंड पॉलीमरेज 1, और ला फॉर लाइगेज। और इसके साथ याद रखना है हमें एसएसबी प्रोटीन। ये अगर पूरा आप याद रख सकते हो तो दिस कम्स टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक, अगर इसके बावजूद किसी को भी अगर थोड़ा सा भी डाउट है किसी टॉपिक के ऊपर, तो प्लीज वो कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसका डाउट सॉल्व करवा दूंगा। और इसके साथ आप मुझे व्हाट्सएप में भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नंबर्स आपके एंड में प्रोवाइड किया हुआ है। थैंक यू।